guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing amazing. It's been a while. Today I'm going to talk about how leaving science or leaving NEET in particular has literally saved me, especially after the recent news that has come out. But before I start with this video, I'd like to say that I do not mean to mock anyone or disrespect anyone. That is not me, and I do not support that or anything like that. Anyways, let's begin with this video. Firstly, for people who don't know, the NEET exam is basically like national exam for people who want to pursue medical in the future. And 2026 में NEET May 3rd को हुआ था, जो May 3rd को हो गया था exam. People gave the NEET UG exam May 3rd को. And it has come, a news came out recently कि the NEET UG paper had been leaked. So apparently एक guest paper था जो लाइक स्टूडेंट्स को मिला था, एंड वो गेस्ट पेपर एंड नीट का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था. सो द नीट यूजी पेपर, सो इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट द नीट यूजी पेपर वाज लीक्ड, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस है कि द नीट यूजी एग्जाम हैज बिन कैंसल्ड, एंड पीपल हु अपियर फॉर द नीट यूजी एग्जाम हैव टू रीअपियर फॉर अनदर नीट एग्जाम. इट genuinely baffles me कि ये सिस्टम हमें हर बार कैसे फेल करता है, and how it is always the students who have to pay for the system bullshit. Like, being a non-science student, like I'm not in science, I left science, I have so much rage ये न्यूज की वजह से. I cannot even imagine how people who are in this state, people who are in science or have given NEET recently are going through, because some of my friends are, and they are not in a good mental state at all. It genuinely makes me so sad that we cannot even expect the bare minimum from our system, and how it's always the students who have to suffer. So basically, news agencies are also covering this, covering another perspective to this, how students have mixed reaction to this retest. Some people who did not do good in their NEET or did not study the entire year are so happy that they get the second chance. And I am all for second chances. मतलब अगर आप खुश हो तो I'm very happy. But I genuinely believe, I have been in NEET 11th grade में for a month, and I know कि अगर आपको नीट एग्जाम जेन्यूनली क्रैक करना है तो द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए होता है, बिकॉज मेरे पास नहीं था. सो आई नो द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन जो चाहिए रहता है. आई एम अ फर्म बिलीवर कि इफ यू वांट टू डू नीट, और इफ यू वांट टू सक्सीड इन नीट, गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, यू हैव टू गिव अप ऑन योर सोशल लाइफ. You have to sit at home, give hours studying, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, एंड प्राइवेट कॉलेजेस आर शिट एक्सपेंसिव. तो ऑब्वियसली everyone who does NEET, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम करता है. एंड यहाँ पे इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है कि आफ्टर 10th मोस्ट पीपल फील कि साइंस लाइक नीट या जेई के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब अगर मैंने नीट जेई नहीं किया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, अगर मैंने मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं किया मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी. तो ये कंसिडरिंग हाउ मच ऑफ a high level people have kept NEET and JEE exams, and still the system chooses to fail us, is absolutely baffling. I'm sorry if I am literally raging, because मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि people who have worked so hard the entire freaking year have given up on their social life. अब ये न्यूज सुन के अपना फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से लाएंगे वो लोग, कि कहाँ से they'll be like कि ओ अभी let's start studying again. I don't get it. I swear अगर मैं अब नीट एग्जाम दिया होता मैंने, अगर मैंने ये न्यूज सुनी होती तो I genuinely would have lost all fighting spirit, because what do you mean people who actually gave their all, जब उनने नीट May 3rd को दे दिया, they finally thought कि oh my god, thank you भगवान, मेरा एग्जाम अच्छा गया बिकॉज मैंने पूरा साल हार्ड वर्क किया एंड अभी खत्म हो गया. नाउ आई कैन फाइनली एंजॉय. देव बुक्ड वेकेशंस, देव बुक्ड एवरीथिंग, एंड दिस न्यूज कम्स आउट. ऑब्वियसली अगर ये सिस्टम फेलियर है तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग कि अगर कोई पेपर लीक किया गया है एंड आप उस बेसिस पे ऑब्वियसली रिजल्ट निकालो, एंड द पीपल हु हैव
रेफर्ड टू द गेस्ट पेपर पहले एंड उनने उस हिसाब से नीट पेपर दिया, तो इट वुड बी वेरी अनफेयर कि आप उनको सिलेक्ट करो ओवर द पीपल हु एक्चुअली वर्कड हार्ड. बट at the end of the day, it all comes down to questioning the system. Ki when will the system actually realize? And this has been, obviously people are saying कि you claim to be 10 steps ahead. कौन से 10 steps ahead? आपके 10 steps की वजह से students are going 10 steps behind. मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम सिस्टम से बेयर मिनिमम क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इवन विद पीपल हु हैव टेकन सीबीएसई एज वेल. यू गाइस नो कि सीबीएसई 12th के रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए. दे हैव जस्ट पुट अ कमिंग सून बैनर. व्हाट इज दैट? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कमिंग सून डाल के क्या बोलना चाहते हो. यू आर अ फ्रीकिंग नेशनल एग्जामिनेशन. आप एक डेट क्यों नहीं डाल सकते कि आप एक डेट क्यों नहीं डाल सकते कि ये डेट पे रिजल्ट्स रिलीज हो रहे हैं? व्हाट इज कमिंग सून? यू आर playing with students के anxieties and everything. And as we know that Indian education system is already not flexible with students at all. It is so rigid. And फिर भी ये सब हो रहा है कि हम I will keep on repeating this कि ये system से हम bare minimum भी expect नहीं कर सकते. And this is just so wrong. I'm at a loss of words क्योंकि again मैं तो ये पोजीशन में हूं भी नहीं, मुझे वापस एग्जामिनेशन देना ही नहीं है. फॉर पीपल हु हैव टू गिव इट अगेन, आई जेन्युइनली कैन नॉट इमेजिन हाउ fucked up of a situation it is. My friends are literally crying. One of my friends is literally crying, losing his shit, and for the right reasons. Because what do you mean? और मैंने like एक टॉपर का भी जो like जिसका नीट पेपर बहुत अच्छा गया, उसने like एक इंटरव्यू दिया है कि अब वापस नहीं हो पाएगा. Obviously वापस नहीं हो पाएगा ना, because what is this? Like this is so fucked up. I genuinely feel so sorry. मतलब मैं feeling sorry के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती. I am just using my platform because I know some people listen to me. I'm using my platform to say how fucked up this entire situation is, and nobody, absolutely nobody deserves to go through this. ये system failure की वजह से जो students को जाना पड़ रहा है, this is absolutely disgusting. Absolutely disgusting. एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन भी लीक हो रहा है, तो अब मैं क्या एक्सपेक्टेशन क्या रखूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से? एनीवेज कमिंग बैक टू माई स्टोरी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो कि मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया टू लीव साइंस, व्हाई डिड आई डिसाइड टू लीव साइंस, या ये सब डिसीजन कैसे बना. तो लेट मी गो बैक टू 10th ग्रेड, और नो लेट मी गो बैक बचपन से. तो बेसिकली माई मॉम एंड डैड, जब से मैं पैदा हुई हूँ, माई मॉम एंड डैड हैड वन ड्रीम कि मैं डॉक्टर बनूं. Because apparently it was my mom and dad's dream to become a doctor or go in the medical profession, and उनसे वो हो नहीं पाया, तो obviously वो सारे expectations मुझ में आ गए. And बचपन से it has always, like even before I knew what a career was, मुझे पता था कि मैं एक डॉक्टर बनने वाली हूँ. Even before I knew what a doctor was, मुझे पता था कि I am going to become something which is called a doctor. And तो मतलब मेरे लिए कभी वो थॉट प्रोसेस या कुछ ऐसा ओपन अप किया ही नहीं गया कि और भी बहुत सारे करियर्स होते. नहीं, डॉक्टर, देविका एक डॉक्टर ही बनेगी. तो बेसिकली ऑब्वियसली लाइक 10th तक मुझे इतना ट्रेन किया गया मेंटली कि जब भी कोई मुझे पूछे, मेरे डैड की बॉस अगर मुझे पूछे कि बेटा आपको क्या बनना है, मैं आई हैड नो स्पेस फॉर थॉट. डॉक्टर, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगी. कौन सी डॉक्टर वो डिसाइड नहीं किया, बट जरूर डॉक्टर तो जरूर बनूंगी, बिकॉज मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं. एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे आई ग्रू अप एंड स्टफ लाइक दैट. एंड एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप अपने मॉम एंड डैड को देखते हो कि दे आर सो कीन फॉर यू टू डू समथिंग एंड they've laid all of your expectations on you, to even have the courage कि आप कुछ और सोचो करने के लिए is very difficult. मतलब मेरा तो ब्रेन मतलब रेडी नहीं हो रहा था कि मैं अपने लिए कोई और ऑप्शंस देखूं. तो 10th खत्म हुआ एंड ऑब्वियसली आई लव साइंस अप अंटिल 10th ग्रेड. एंड मेरे दिमाग में लाइक सेट था कि डॉक्टर ही करूंगी, ये सब करूंगी. बट फिर ऑब्वियसली लाइक आफ्टर 10th यू आर बाउंड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डिफरेंट करियर ऑप्शंस. तो मुझे बहुत करियर ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन था. तो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज स्टक विथ आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू. एंड ये मेरे पेरेंट्स के लिए एक एडवांटेज बन गया कि ये ऐसा तो नहीं बोल रही कि मुझे साइंस नहीं करना, इसको तो पता ही नहीं इसको क्या करना है, तो इसको साइंस में डाल देते हैं. तो कट टू 10th में, 10th के बाद 11th में मुझे साइंस में डाल दिया. एंड मुझे एक इंस्टीट्यूट में डाल दिया विच इज़ अ वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, लेट्स कॉल इट ए.
तो मुझे वो इंस्टीट्यूट में डाल दिया एंड द मोर मेरा फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, द मोर एंड मोर आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट आई अंडरस्टूड कि ये जो लोग ने ये नीट, आई टुक नीट, स्पेसिफिकली साइंस में आई टुक नीट। तो ये इंस्टीट्यूट में लोग ऐसा 3 कैटेगरी में बटे हुए थे। नंबर 1, people who actually are ready to give in, people who actually want to do this profession and are super passionate about this profession, and know कि they have to give up stuff to study, and people who actually want to study. Number 2 वो लोग थे who do not know what they want to do, who absolutely do not know what they want to do, and they are either लाइक सिंस उनको कुछ नहीं करना, पैसे कमाने के लिए वो साइंस जा रहे हैं, क्योंकि उनको हमें बचपन से बताया गया कि अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो आप या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो करने जा रहे हैं एंड या तो दे आर यूजिंग साइंस एज लाइक अ बैकअप ऑप्शन कि मैं 12th तक साइंस करती हूँ, मैं सेफ रहती हूँ, और अगर 12th के बाद मुझे स्विच करना है तो मैं कर लूंगी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड बाय देयर पेरेंट्स, द पीपल हु एब्सोल्युटली do not have no choice of theirs. Luckily मैं वो थर्ड कैटेगरी में नहीं, मैं सेकंड कैटेगरी में थी, मेरा थोड़ा ऐसा वर्सेटाइल था। तो फिर मुझे जीरो इंटरेस्ट था साइंस में। द थिंग इज दैट 10th का साइंस और एक्चुअल ऐसा नीट वाला साइंस बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। एंड मेरा फर्स्ट 1 महीने में ही मुझे समझ गया कि मुझसे नहीं होने वाला है, मुझसे नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, गवर्नमेंट तो होने ही नहीं वाला। एंड आई डू नॉट वांट माय पेरेंट्स टू स्पेंड सो मच ऑन प्राइवेट एजुकेशन फॉर समथिंग आई डू नॉट इवन वांट टू डू एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू डू। मतलब मुझे करना ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं था। एंड लाइक वो पूरा 1 महीना आई वॉज जस्ट लाइक getting up, going to that institute, coming home, sleeping, getting up, going to that institute, coming home, sleeping. I was complete ऐसा monotonous हो गया था ना, and I was not enjoying it क्योंकि मुझे करना ही नहीं था वो। I had no idea मुझे क्या करना था, and it was just like days were just passing by और मैं बस उधर ऐसा बैठी हूँ। And टू सी कि मैं जब भी वो इंस्टीट्यूट से घर आती थी, माई पेरेंट्स यूज टू बी सो हैप्पी कि हाउ वाज योर डे, क्या किया आज, क्या सीखा। मेरे अंदर और गिल्ट आने लगा कि अब मैं लाइक इनको कैसे बताऊं कि मुझे नहीं करना है। बट आई न्यू कि मुझे अगर बताना है या अपने लिए फाइट करना है तो इट हैड टू बी सून, लाइक आई कुड नॉट डू इट लाइक 11th के एंड में कि बहुत लेट हो जाए कि मैं स्विच ही ना कर पाऊं और मैं फंस जाऊं। तो फिर एक दिन मैंने लाइक मैंने मेरी मम्मी को बोला कि लिसन, मैंने मेरी मम्मी को बिठाया और मैंने बोला कि मुझे साइंस नहीं करना है। माई मॉम वाज लाइक व्हाट, पागल हो गई है क्या भाई, ये ऐसा होता है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बिठाया एंड उन्होंने मुझे बोला लिसन, ये एंजाइटी अटैक्स आते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू क्विट, लाइक दिस जस्ट अ 1 डे थिंग, लाइक तूने अभी स्टार्ट किया है तो इतना क्यों टेंशन ले रही है। तो मैंने मेरी मम्मी को वही बोला कि मैंने स्टार्ट किया है, मैंने लिटरली स्टार्ट किया और मुझे अभी ऐसा लग रहा है, तो मुझे आगे जाके क्या ही होगा। लाइक मुझे एब्सोल्युटली जीरो इंटरेस्ट है इसमें, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे साइंस नहीं करना। लाइक मुझे नहीं पता मुझे आगे जाके क्या करना है, बट आई डू नॉट वांट टू डू साइंस, आई डू नॉट बिलोंग हियर, एंड आई न्यू दैट एवर सिंस आई जॉइंड दैट इंस्टीट्यूट। तो माई मॉम वाज लाइक, सारी मम्मी की तरह माई मॉम वाज लाइक पापा क्या बोलेंगे, जाके तू पापा से बात कर, मुझसे बात मत कर। पापा से बात करना तो इतना इजी होता नहीं है कि मैं पापा से कैसे बात करूं कि आपका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम है एक्चुअली मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे साइंस में जीरो इंटरेस्ट है, मुझे साइंस नहीं करना, और अगर मैं साइंस करूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, तो फेल ना होने के लिए मुझे साइंस नहीं करना। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज एंड बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा वो टाइम पे ब्रेकअप भी हुआ था अनफॉर्चुनेटली। आई डेटेड अ चीटर, माय बैड। मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मेरी मम्मी को लगा था कि मैं साइंस छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत सैड हूँ। अब मैं मम्मी को भी कैसे ब्लेम करूँ, माई मॉम वाज इन डिनायल एज वेल कि ये जो इतने साल से बोल रही है कि मैं साइंस करूंगी साइंस करूंगी, अब इसको क्या हो गया, अब ये पीछे क्यों हट रही है, ये पीछे डर क्यों रही है। एंड द थिंग इज दैट मेरे जो सोसाइटी के फ्रेंड्स है जो बचपन से आपके साथ दे ग्रो, ऑल ऑफ देम हैव टेकन साइंस। तो मतलब मम्मी का भी ऐसा पूरा ग्रुप फॉर्म हो गया है, ऑल ऑफ देम हैव टेकन साइंस, और मैं बैक आउट कर रही हूँ। लाइक भाई तू बैक आउट करेगी तो लोग क्या बोलेंगे, वो ग्रुप क्या बोलेगी। एंड आई वाज लाइक मम्मी, फॉर once I need you to think about me and this is not about my breakup। ऐसा होता है ना कि जब भी the people you love
कि आप अगर वो कुछ गलत करे, आपके हिसाब से अगर वो कुछ गलत करे, तो यू फाइंड एवरीवन एल्स टू ब्लेम बट दैट पर्सन। तो मैंने भी बोला कि दिस इज नॉट द टाइम टू ब्लेम समवन एल्स, इट इज मी, आई डोंट वांट टू डू इट, मुझे अंदर से नहीं करना है। तो फिर लकीली आई हैव एल्डर सिस्टर हु इज एन एब्सोल्यूट जेम एंड अ रियली 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 अंडरस्टैंडिंग पर्सन। तो मैंने उससे बात की एंड शी वाज लाइक चल मैं मम्मी से बात करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार, मेरी मम्मी मतलब कैसी भी हो, मेरी मम्मी लाइक पिघल जाती है। लाइक मैं कुछ बोलती हूँ और ऐसा ना हो, मेरी मम्मी ऐसा करती नहीं है। लाइक शी कैन डू एनीथिंग फॉर मी। तो मैंने और मेरी बहन ने मेरी मम्मी को समझाया कि अगर आप मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं, लाइक ऑब्वियसली अगर मैं नीट कर रही हूँ तो आई हैव टू मेक अ 2 year प्लान फॉर माई सेल्फ ऑन हाउ टू क्रैक नीट। मेरे से 1 महीना टिका नहीं जा रहा था, आगे क्या ही होगा। तो वी मेड लाइक अ प्लान फॉर मी कि मुझे ये नहीं करना। और मेरी बहन ने बोला कि उससे नहीं हो रहा है, लाइक आई थिंक यू शुड गिव हर द फ्रीडम टू डू व्हाट शी वांट्स। एंड लाइक उसको छोड़ दो, लाइक अभी के लिए, लाइक लेट हर डू व्हाट शी वांट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज देविका वांट, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे साइंस नहीं करना है। तो मेरी मम्मी से ठीक है चल बता तुझे करना क्या है। और मेरी मम्मी ये रोते रोते बोला मुझे कि तुझे करना क्या है। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं कुछ भी कर लूंगी पर मैं साइंस नहीं करूंगी। एंड आई ऑलवेज लाइक कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आई ऑलवेज हैड लाइक अ इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। एंड कभी ऐसा, अभी आप ही सोचो इन अ फैमिली वेयर यू थिंक साइंस इज एवरीथिंग, अगर मैं जाके बोलूं मुझे आर्ट्स करना है, सामने से सब 2 थप्पड़ आएंगे ना मुझे, एक मम्मी के एक पापा के, ऐसे ताली बजा के ऐसे थप्पड़ आएंगे। तो मैंने मम्मी को बोला कि आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन आर्ट्स। और मेरी मम्मी को भाई, मेरी मम्मी वो लाइक क्या बोल रही है भाई, तू पागल वागल होगी, साइंस से सीधा आर्ट्स जाएगी। And this thinking like kind of triggers me a lot because this thinking is absolutely not true. But अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं, बट मुझे पता था कि मुझे मम्मी को समझाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं और मेरी बहन बैठे एंड वी एक्सप्लेन इट टू मम्मी। तो मम्मी धीरे धीरे समझने लगी एंड शी इज लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस बट इफ यू वांट इट ठीक है। तो अब आए पापा, द मेन डॉन ऑफ द फैमिली। एंड मेरे पापा आए ऑफिस से, आई स्टिल रिमेम्बर द स्टिल डेट कि मेरे पापा आए ऑफिस से एंड मैंने पापा को बोला प्लीज सिट। एंड माय डैड इज लाइक थोड़े हाइपर, ठीक है तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे डैड बैठे एंड मैंने उनको बोला दैट आई डोंट वांट टू डू साइंस एंड मुझे नहीं परस्यू करना एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। एंड फिर माय डैड ऐसा नीचे देखा, फिर मुझे वापस देखा एंड इज लाइक नो। एंड आई एम लाइक हाँ, इज लाइक नो, उठ के चले गए। एंड आई वाज लाइक अब मैं ये नो का क्या करूं, मैं अब ये नो का क्या करूं मैं। तो फिर मैं गई अपने डैड के रूम में, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम कि मुझे नहीं करना, लाइक मुझसे नहीं होगा, लाइक मुझसे नहीं होने वाला एंड आई वांट टू स्विच टू आर्ट्स। अब पापा आर्ट्स, अब सोचो मम्मी का आर्ट्स सुन के रिएक्शन ऐसा था, तो पापा का क्या ही होगा। पापा ने बोला तू आर्ट्स करेगी। एंड फिर घर पे थोड़ा कलेश हुआ कि पहले बता देती तो पैसे सेव हो जाते, ये हो जाते वो हो जाते। एंड आई वाज लाइक मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैंने ये आपकी वजह से किया है। लाइक मैं मम्मी पापा को कैसे ब्लेम डालू, लाइक एट द एंड ऑफ द डे माई एक्शंस आर माई एक्शंस। अगर मैं 10th के बाद मम्मी को बोल देती तो शायद, मम्मी पापा को बोल देती तो शायद मेरे लिए बेटर होता। बट मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या करना है, आई वॉज सो क्लूलेस। और मुझे बचपन से ऐसा ब्रेन में ऐसा रजिस्टर करके रखा है कि साइंस नीट साइंस डॉक्टर, नीट साइंस डॉक्टर। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो फिर मेरे पापा ने, लाइक आई सेड एट द एंड ऑफ द डे आई एम सो लकी टू हैव द पेरेंट्स दैट आई हैव कि एट द एंड ऑफ द डे दे ओनली वांट माय हैप्पीनेस। तो मेरे डैड ने भी सेम डायलॉग मारा है मेरी मम्मी जैसे कि मुझे आई एम नॉट ओके विद इट बट तुझे जो करना है कर, तुझे जो करना है कर। एंड अभी नॉर्मली मैं तुझे जो करना है कर जब मेरे डैड के मुंह से निकलता है तभी मैं चुपचाप जो करने वाली, लाइक चुपचाप जो पापा ने बोला वही करती। बट ये जो करना है कर, मेरे मेरे अंदर एक अलग जोश आया। लाइक छोड़ रही हूँ मैं, लाइक फॉर श्योर छोड़ रही हूँ मैं। फिर 3-4 दिन ये सब चलता रहा एंड फिर 3-4 दिन के बाद मैं मेरी मम्मी को वो ए इंस्टीट्यूट में लेके गई ना। मुझे नहीं पता था कि मुझे मम्मी पापा से ज्यादा वो ए इंस्टीट्यूट वालों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे साइंस नहीं करना। मुझे लगा था मैं जाऊंगी उनको बोलूंगी कि ओ आई एक्चुअली डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन साइंस एंड आई वांट टू बैक आउट, और वो बोल देंगे ठीक है हियर्स योर रिफंड। मुझे मेरे मम्मी पापा से ज्यादा इन इंस्टीट्यूट टीचर्स को कन्विंस करना पड़ा कि भाई मुझे नहीं करना साइंस, मुझे प्लीज छोड़ दो, आपके पास लाख लोग हैं उनको लेके जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। तो आई रिमेम्बर कि मैं ऑफिस में गई थी। तो ऑफिस में वो लाइक द मैनेजर ऑफ लाइक द इंस्टीट्यूट केम एंड वो बैठे और एकदम ऐसा साइलेंट, ऐसा एकदम ऑरा फार्म करते हुए बैठे।
and he was like, what's the issue, what's the issue? एंड मेरी मम्मी मुझे देख के बोल रही थी, व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द इशू? तो मैंने उनको बोला कि आई मेड अ डिसीजन दैट आई डू नॉट वांट टू परस्यू नीट और साइंस एनी मोर. I have absolutely no interest in it and I would not like to pursue it आगे. And I have made the decision, and it was a very hard decision. I have made the decision कि I want to leave. So the person was like, he's like, what do you want to do? तो मैंने बोला कि आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इन आर्ट्स. उनका ऐसा मुंह बनाया ना उन्होंने कि भाई आर्ट्स. फिर उन्होंने मेरी मम्मी को देखा एंड माय मम्मी वाज लाइक, तो ही इज लाइक सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड की बात बोलता हूँ. तो मैंने बोला बोलिए. तो उनने बोला कि इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ नहीं होता, चुपचाप साइंस करो. एंड ये सुनने के बाद आई वॉज जेन्यूनली टेकन अबैक कि सर हाँ. तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लाख लोग हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए आए हैं? इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ नहीं होता बेटा, साइंस इज द फ्यूचर, तुम साइंस ही करो. और फिर मेरी मम्मी को ऐसे आंख खुल गई भाई, कि मतलब मेरी मम्मी इतनी हैप्पी हो गई कि वो सर भी मुझे कन्विंस करे कि मैं साइंस में ही कंटिन्यू करूं. माय मॉम वाज लाइक, है ना, मैं भी उसको यही बोलती हूँ, है ना. एंड आई वाज लाइक, मम्मी थोड़ा मेरे साइड में आ जाओ. तो फिर आई वॉज लाइक, सर बट टू मी माई इंटरेस्ट मैटर्स एट दिस मोमेंट एंड आई एम सो सॉरी बट माई डिसीजन इज फाइनल. तो फिर बेसिकली वो इंस्टीट्यूट के ही गॉट लाइक द फिजिक्स सर एंड आई वॉज लाइक द क्लोजेस्ट टू माई फिजिक्स सर बिकॉज आई एक्चुअली रियली लाइक माई फिजिक्स सर वो क्लास के. एंड आई वॉज बेसिकली लाइक द क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर लाइक फिजिक्स, क्योंकि वो मुझे सारे पीडीएफ भेजते थे और मैं क्लास को भेजती थी. तो वो उनको लाए एंड ही वाज लाइक, ये तो मेरे इमोशंस के साथ ही खेलेंगे. तो माय सर वाज लाइक, बेटा तू इतना अच्छा कर रही है, तू सब आंसर करती है, यू डू ऑल द होमवर्क, यू स्कोर वेल, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम मुझे करना नहीं है, लाइक आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, मुझे नहीं करना, लाइक आई नो फॉर श्योर दैट साइंस इज इन फॉर मी. तो अगेन दे वर लाइक, अगेन ही वाज आल्सो लाइक, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता बेटा, मनी कमाना है साइंस में रहो, पैसा कमाना है साइंस में रहो. एंड आई वाज जस्ट लाइक, सर I was just hurt by whatever sir said कि ये मतलब ये क्या बोल दिया सर ने. तो मैंने बोला कि सर एट दिस पॉइंट आई एम वेरी श्योर कि मुझे नहीं करना. तो सर ने मुझे बोला, बेटा तुम्हें एक्चुअली साइंस करना है बट तुम पढ़ने से डर रहे हो. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेन एक्सक्यूजेस दैट पीपल यूज फॉर पीपल हु डोंट वांट टू डू साइंस, कि उनको बिठाने के लिए कि यू आर जस्ट लीविंग इट बिकॉज इट्स टफ. It is not like that. I love challenges myself. I love to prove people wrong when people say that I am dumb or something like that. I love to learn. I love to be knowledgeable. So it wasn't about that, and I knew for sure it wasn't about that because जो एक महीना मैंने वो इंस्टीट्यूट में डाला, it was literally testing myself कि मैं साइंस से डर रही हूँ या मैं अपनी सोशल लाइफ कट ऑफ करने से डर रही हूँ या मैं पढ़ने से डर रही हूँ. तो मेरे लिए बहुत क्लियर था कि दिस इट इज साइंस आई डोंट वांट टू डू. ऑब्वियसली मुझे अपनी सोशल लाइफ भी नहीं, आई डिडंट वांट टू गिव अप माय सोशल लाइफ, लाइक फॉर श्योर मुझे नहीं करना था वो. आई वाजंट रेडी टू डू दैट. रिस्पेक्ट, माय लिटरल रिस्पेक्ट टू पीपल हु लिटरली do that because science is so difficult and the dedication required for science is hats off to people who do that. I am so sorry for this system error या जो भी, but hats off to people who do that. तो मैंने वो इंस्टीट्यूशन को बोला कि मुझे नहीं करना. तो they were finally like ठीक है, अब आप अपना फ्यूचर देख लो, ऑल द बेस्ट. एंड मेरी मम्मी बहुत सैड हो गई थी एट द एंड ऑफ द डे, और वो कॉन्वर्सेशन मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वो कॉन्वर्सेशन के बाद 0.1% ऑफ माई माइंड वॉज थिंकिंग कि शुड आई जस्ट केव इन, और मैं इनकी सुन लेती हूँ भाई, शायद ये करेक्ट है, लेकिन इतने मतलब ये टीचर्स है, इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, तो कुछ तो समझ के बोला होगा. तो ऑनेस्टली 0.1% क्या यार, 20-30% ऑफ मी वाज लाइक शुड आई जस्ट केव इन टू व्हाटएवर दे सेड. पर वो जो 70-80% था वो बहुत श्योर था कि देविका यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स एंड लाइक साइंस नहीं, लाइक
मैं कुछ भी कर लूंगी बट मैं साइंस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें. लाइक आई हैव एब्सोल्युटली जीरो इंटरेस्ट इन दिस. मुझे करना नहीं है. आई एम नॉट रेडी. लाइक मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है. आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. तो ऑब्वियसली हम इंस्टीट्यूशन गए एंड वी गॉट I got out of the institute and it was kind of hard telling my friends that I'm not doing science anymore. क्योंकि अगेन यहाँ पे सबको लगता है कि जो लोग साइंस नहीं करते वो डम्ब होते हैं. जो लोग आर्ट्स में होते हैं, स्पेशली जो आर्ट्स में होते हैं, जो लोग आर्ट्स कॉमर्स में होते हैं वो सिर्फ डम्ब होते हैं. उनको कुछ लाइफ में करना नहीं है, उनको बस पार्टीज करनी है लाइफ में, और इसीलिए वो साइंस में नहीं गए. और जो साइंस में होते हैं वो सबसे स्मार्टेस्ट होते हैं. मतलब सारे जन जिनको जिनको साइंस आता भी नहीं होगा और वो फिर भी साइंस में, उनको लगता होगा भाई ये भाई इतने स्मार्ट है. आर्ट्स में अगर मैं 80% लाई और मैं साइंस में 40% लाई, फिर भी वो बोलेंगे कि साइंस वाला स्मार्ट है, साइंस वाला बहुत स्मार्ट है. एटलीस्ट दैट्स द सोसाइटी दैट आई कम फ्रॉम, अनफॉर्चुनेटली. तो मेरे फ्रेंड्स को बताना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज आई वॉज लाइक भाई ये सोच रहे होंगे कितनी डम होगी भाई कि इससे हो नहीं रहा है इसीलिए ये नहीं कर रही होगी. तो बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो मेरे लिए. एंड तो फिर मैंने छोड़ दिया. आई ऑफिशियली टुक आर्ट्स एंड आई जेन्युइनली डू नॉट रिग्रेट 1% भी. 1% भी. I actually spoke to my college की vice principal about this as well. I will always remember this conversation कि I told her all of this and she's like, listen beta, I will tell you that you did the right thing by listening to your interest. And वो टाइम पे मुझे वो वैलिडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी बिकॉज लाइक आई सेड वो 20% मेरे अंदर हमेशा से था कि चली जाओ क्या वापस, कि ये केव इन कर दूं क्या इनको. बिकॉज साइंस छोड़ दिया मैंने, ऑफिशियली आर्ट्स ले लिया. आई एंजॉयड, आई स्टडीड, आई डिड इट ऑल. बट मेरी मम्मी, जब भी ऐसा हमारा झगड़ा होता था घर पे, मुझे मेरी मम्मी से हमेशा ताने पड़ते थे कि तूने इसीलिए साइंस छोड़ा, तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना है इसीलिए तूने साइंस छोड़ा, तुझसे साइंस नहीं हो पाया, तुझे साइंस करना चाहिए था. एंड मुझे लाइक ऑब्वियसली वो टॉन्ट्स बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी से मुझे बस इतना बोलना है कि आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन इवन 0.1%. आई लिसनड to my interest. I listened to what my heart and my gut told me कि this is not for you. मुझे नहीं करना था. मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि मुझे नहीं करना था. And I wasn't ready to give up everything for it. I wasn't. जब भी मैं साइंस नहीं करती थी और जब मैं पढ़ती नहीं थी साइंस, तो मुझे ऐसा पीस फील होता था. एंड आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट साइंस एट ऑल. इवन जब मैं वो इंस्टीट्यूट में थी, आई थिंक मैं आधा टाइम तो जोन आउट ही करती थी थिंकिंग कि आई डू नॉट बिलोंग हियर. ये क्लास में ये मैं बिलोंग ही नहीं करती. लाइक मैं नहीं, आई डू नॉट बिलोंग हियर. आई सो देन long story short, I took arts and I really enjoy studying arts. I really enjoy studying different subjects, and I personally do not recommend, like I personally did not regret it at all. And if I want you to take one thing from the story, it is ki please give your mind a chance to look at everything around. There are so many professions, there are so many careers, there is so much. Please अपने इंटरेस्ट की सुनो. क्योंकि देयर इज दिस डायलॉग फ्रॉम थ्री इडियट्स कि आई वुड रादर फेल इन समथिंग जो मैंने खुद चूज किया हो देन फेल इन समथिंग विच माई पेरेंट्स वांटेड टू डू एंड ब्लेम देम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. नाउ आई हैव टेकन आर्ट्स. आई नो व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर. तो मुझे नहीं पता मैं सक्सीड होंगी, फेल होंगी या वट एवर, बट आई नो दैट आई एम गोना गिव माई बेस्ट बिकॉज मुझे जो आगे करना है, आई कैन नॉट गो वन डे विदाउट थिंकिंग अबाउट माई आगे के प्लान्स, माई फ्यूचर के प्लान्स. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैर्ड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू गो टू कॉलेज फर्दर, थिंक अबाउट everything in the future and think about how my life is going to shape me or how I am going to shape my life. And this is all that I want you to take from the story. Thank you so much. Again, with the recent news of the NEET re-examination, I have no words. I am absolutely devastated and disappointed. And again, मैं तो दे भी नहीं रही हूँ एग्जाम. तो for the people who are going, मतलब जो people वापस दे रहे हैं, I just want to say all the best. And I just want to say I'm so sorry. Like no one deserves this. ये system has fucked all of us up. No one deserves this. Anyways, thank you so much for watching this video. I hope you enjoy. And just please जो करना है करो भाई. मतलब
जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ो मत, पढ़ो प्लीज, पढ़ाई करो, प्लीज डोंट टेक दिस इन द रॉन्ग वे कि ये तो बोल रही है भाई जो करना है करो, अब तो मैं ऐशो आराम करूंगी। प्लीज पढ़ो, study something जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, because there is so much to learn in this whole entire world. And yeah, that's it. One more thing, the people, so I, like I said कि मेरे क्लास में 3 लोग अलग अलग divided थे. The people who did not want to take science, or people who were forced to take science, or people who were using science as a backup option, there are probably like 50 to 60 people who have reached out to me from the A Institute as well कि listen please help me कि मैं साइंस कैसे छोड़ू, like मुझसे नहीं हो रहा है, like मैंने पूरा 1 साल 11th ग्रेड का वेस्ट किया जस्ट फॉर माई पेरेंट्स, एंड यू नो ये सोच के कि मैं पेरेंट्स के लिए कर लूंगी, बट मुझसे जेन्यूनली नहीं हो रहा है, आई एम सो क्लोज टू फेलिंग. तो when I'm telling you to listen to your interest, I'm telling you because I have a lot of uh, people who come to me and talk to me about it. And obviously guys, your parents love you to death, my parents love me to death, and but it's your life and you should have a choice of what you want to study. um yeah, that's it. Thanks so much for watching this video. I hope you enjoy watching this video. Bye bye.